Hello students, I am Roshni Thawani and today we are going to study the chapter Organizing. As we have already discussed in the previous chapter that there are 5 functions of management given by Henry Fayol: planning, organizing, staffing, directing and controlling. So we have already studied planning and today we are going to study organizing. But let us remember that what is the meaning of plan, because plan is the first and prime functions of management, and after that we can implement organizing. So in planning we have decided that what to do, when to do, where to do. So everything we have decided that what kind of activities we are going to do, so that we have decided in planning. But what is organizing? Organizing suggests us that how we are going to allocate the resource with those activities, and those resource can be physical, those resource can be financial, and those resource can be human resource. If I'll explain it or if I'll elaborate this thing, so I'll tell you in a very simple language कि जो भी हमने एक्टिविटी की है, जो भी हमने प्लानिंग किया, जो हमने एक्टिविटी डिसाइड की, फॉर एन एग्जांपल 1 to 10 एक्टिविटीज़ मैंने डिसाइड किए, तो एक्टिविटी 1 में क्या फाइनेंशियल, फिज़िकल और ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और फिज़िकल रिसोर्स क्या होता है. तो फाइनेंशियल रिसोर्स का मतलब है फंड, क्या कैपिटल, कितना कैपिटल लगेगा. फिज़िकल रिसोर्स का मतलब है कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, प्लान्स. और ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है एम्प्लॉयज़. सो एक्टिविटी नंबर 1 पे कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा, उस एम्प्लॉय के साथ कौन से रिसोर्सेज होंगे. एक्टिविटी 2 पे कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा, उस एम्प्लॉय के पास कौन से रिसोर्सेज होंगे. ये जो हम प्लान आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. फर्स्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो कोई भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें चीज़ है वो है गोल. विदाउट गोल यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट एनीथिंग. विदाउट गोल यू कैन नॉट सक्सीड in the functions of management. For either it's a plan, either it's a organizing, you should have a certain goal. So goal can be anything, as we have discussed already, but I'll repeat it again, that goal can be that company wants to increase their sales, company wants to increase their profit margin, company wants to reduce their cost of production. So everything would be identified in this. Now steps in organizing. First of all, what we would be doing in the organizing, the first step is division of work. So what is division of work? As see, there would be n number of activities we have planned. So but what we would be doing, we would be bifurcating the activities. We would be dividing the activities. That whole activity we have planned, that we would be dividing that activity number 1, activity number 2, activity number 3. So in that manner we would be dividing the work. Second is departmentalization. See, I'll explain this 2 points together. तो सबसे पहले जैसे कि 10 एक्टिविटी है, कि 10 काम है हमारे पास, तो हम उसको क्या करा, हमने उसको बाइफकेट किया अलग अलग एक्टिविटीज़ में. मतलब टोटल एक्टिविटीज़ को हमने 10 एक्टिविटी में बाइफकेट किया. लेकिन अब ये बाइफकेशन किस हिसाब से होगा, सिमिलर काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज़ है वो सब हम एक डिपार्टमेंट में रखेंगे. जैसे कि अगर आप समझो कि हमारा सिरामिक का बिज़नेस है, सिरामिक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो एक डिपार्टमेंट है कि जहाँ पे सिरामिक का रॉ मटेरियल आएगा, फिर वहाँ पे वो टाइल्स बनेंगे. हाँ, एक डिपार्टमेंट होगा कि जो वो सिरामिक का एडवर्टाइज़ करेगा और उसका जो भी मार्केटिंग है वो दिखेगा. एक डिपार्टमेंट देखेगा कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ले आओ, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. कहीं उनको लगेगा कि ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है तो उनको ट्रांसफ़र या प्रमोशन देने की ज़रूरत है. तो ये हम क्या करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को हम एक डिपार्टमेंट में रख देंगे. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं सेम एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करूँगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें से 1 2 3 आर सिमिलर,
4, 5, 6 आर सिमिलर, 7 to 10 आर सिमिलर। तो 1, 2, 3 का एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको एक डिपार्टमेंट में जाने दिया। 4, 5, 6 का एक डिपार्टमेंट बनाया, उसको दूसरा डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, तो इस वे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद हम सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ को एक साथ रख रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जैसे ही मैंने कहा कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, अब मैंने डिपार्टमेंट बना दिए, अब डिपार्टमेंट के काम भी डिसाइड हो गए, बट इट इज़ वेरी इसेंशियल कि किसको क्या ड्यूटी मिलेगा। अब you will think, it is very easy to assign the duty, but no, you need to be very careful when you are assigning the duty. What you need to be careful is that whatever the duties you are assigning, the person should have the similar kind of skills. For an example, if somebody is expert in production, and if you are assigning him a duty of marketing, then the person won't be able to do his task properly. उसको वही काम वही प्रॉपरली कर पाएगा कि जो उसके पास नॉलेज या जो उसके पास स्किल्स हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि पर्सन के पास अगर एक्सपीरियंस या स्किल्स है, वही उसको ड्यूटी असाइन करो। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। सी, अगर एक केक बना रहा है, कोई शेफ़ केक बना रहा है, हाँ, और एक हो कि आपको मन हुआ कि चलो केक बनाते हैं, तो शेफ़ केक बनाएगा और आप केक बनाओगे, किसका परफेक्ट होगा? शेफ़ का होगा, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, तो आप उसमें शायद फेल भी हो सकते हो, और बनेगा तो शेफ़ के जितना तो नहीं बनेगा, राइट? तो इसीलिए शेफ़ को क्यों काम दिया जाता है केक का? हाँ, वाई वी प्रेफर कि हम बाहर से केक लें, हम घर पे आता है फिर भी नहीं बनाते, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि वो हमको बाहर से परफेक्ट चीज़ें मिलेंगी, राइट? तो इसी वे में द पॉइंट इज़ कि जिसको जो काम आता है उसको वही सौंपना चाहिए, तो चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं। सेकेंड इज़ एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप। सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप इज़ व्हाट? सबसे पहला डिपार्टमेंट, जैसे हमने डिपार्टमेंट बना दिए, सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ बना दिए, हमने सबको काम भी सौंप दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होता है? कंट्रोलिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है कि उनके ऊपर कोई वॉच रखे। हाँ, इफ़ आई टेक वेरी सिंपल एग्जांपल, आपको पता है कि आज कोई टीचर आपका लेक्चर लेने नहीं आने वाला, हाँ, तो आपको कितना खुशी होती है, आप कितना रिलैक्स हो जाते हो। दोस्त का कोई वर्क नहीं है, फिर भी आप खुश हो जाते हो। हाँ, आपको थोड़ा लिबर्टी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत आप मस्ती मजाक कर लेंगे। हाँ, इसी वे में एम्प्लॉयज़ का भी ऐसा ही है कि अगर उनके ऊपर कोई वॉच नहीं है या उनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है, तो उनको लगेगा कि चलो जो मन आए वो करेंगे। इसीलिए एक ऊपर हेड का होना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई एस्टैब्लिशिंग ऑथोरिटी रिलेशनशिप, यानी कि जो डिपार्टमेंट हमने बनाए उस हर एक डिपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर हेड रखा जाएगा, जो वो सारा डिपार्टमेंट देखेगा। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड, HR डिपार्टमेंट का एक हेड, तो इस वे में वो अपने पूरे डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर करेगा। सो दिस वर द मेन पॉइंट, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग, डिविजन ऑफ वर्क, departmentalization, assignment of duties, and establishing authority relationship. Now let's move for the importance of organizing. First is specialization. ठीक है, आपको स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी या स्पेशलाइज्ड काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलेगा। किसको मिलेगा? तो एम्प्लॉय का स्पेशलाइज्ड नॉलेज कंपनी को काम आएगा। जैसे अभी हमने बात की वो शेफ़ की, कि शेफ़ मास्टर होता है तो वो चीज़ें परफेक्टली बना सकता है। इसी वजह से अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन में ही इज़ वेरी टैलेंटेड, HR में कोई टैलेंटेड या तो मार्केटिंग में टैलेंटेड, तो वो काम करेगा तो वो परफेक्ट करेगा, उसमें एरर्स कम होंगे। सो वहाँ पे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट रहेगा। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड पावर। ऑर्गेनाइजिंग क्लियरली बोल देता है कि किसका क्या पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग ये सारी चीज़ें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है।
अब आप सोचोगे कि पावर स्पेसिफाई करने की क्या ज़रूरत है, हेड को तो पता ही होता है ना कि उसके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं। बट हियर आई वांट टू से कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जैसे रिलायंस, टाटा, ठीक है, वो इफ़ दे आर सिटिंग देयर इन द मुंबई एंड दे आर लुकिंग टू होल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ होल कंट्री, हाँ, उसमें जहाँ जितने जितने उनके ब्रांचेस हैं उसका पूरा वो वॉच रखते हैं उस पर, तो उसके पास तो ये डिटेल होना चाहिए ना कि उसके अंडर में कितने कितने लोग हैं, उसके अंडर में कितने लोग हैं। तो ये इसी वजह से ये रिलेशनशिप स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि बॉस कौन है और बॉस के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ नॉन एज क्लैरिफाई ऑथोरिटी एंड पावर। नेक्स्ट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी माई पॉइंट इज़ कि रिसोर्सेज कंपनी में बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, फिज़िकल, ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम इट विल नेवर बी इनफ। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे यूज़ करना है तो आपको हमेशा लगेगा अरे रिसोर्सेज हमारे पास कम है। हाँ, जिसको चीज़ें आती हैं वो कम चीज़ों में से भी बेस्ट चीज़ें बना सकता है। हाँ, हम जैसे केक का ही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूँगी कि शायद वो शेफ़ के पास एक दो चीज़ें कम भी होंगी तो उसको पता है कि मुझे कैसे केक को बेस्ट बनाना है। हाँ, उसको वो चीज़ें कम नहीं लगेंगी, पर वो कब हुआ कि जब उसको पता है कि वो केक कैसे बनता है। लेकिन अगर उसी तरह हम जाएंगे तो हम केक बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये चीज़ नहीं है, ये मार्केट में से लाओ, वो चीज़ नहीं है। और जितना चीज़ उसमें ऐड होता होगा उससे ज़्यादा हम उस चीज़ों को ऐड करेंगे, राइट। तो वहाँ पे ऑप्टिमम यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा अगर जिसके पास स्किल नहीं है और वो काम कर रहा है। लेकिन जिसके पास स्किल है तो वो हमेशा उसका बेस्ट यूटिलाइज करेगा और काम कर सकता है। नेक्स्ट इज अडॉप्शन टू चेंज। सी, चेंज इज़ द चेंज इज़ द की फॉर सर्वाइविंग इन द मार्केट। अगर आपने चेंज अडॉप्ट कर लिया तो यू कैन सर्वाइव इन द मार्केट, लेकिन अगर आपने मार्केट का चेंज अडॉप्ट नहीं करा यू कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट, यू वुड बी थ्रोन फ्रॉम द मार्केट। सो दैट्स वाई जो चेंज है वो हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। अब कैसे ऑर्गेनाइजिंग कैसे इस चेंज को अडॉप्ट करेगा? फॉर एन एग्जांपल, अगर उसको लगा कि मार्केट में कोई चेंज आया है तो सो सडनली व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन का ड्यूटी क्या होगा, हायर अ न्यू पर्सन जिसको वो चेंज का नॉलेज है और उससे वो काम लो। हाँ, या तो जो आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हो उसको उसका ये ट्रेनिंग दे दो और वो चेंज को अडॉप्ट करो। तो ऑर्गेनाइजिंग नेवर सेज कि जो हमने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किए हैं वो फिक्स्ड है, नहीं। जैसे ही मार्केट में चेंज आता है आपको न्यू टैलेंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो वो न्यू टैलेंट को भी आप हायर कर सकते हैं, या तो किसी और पर्सन को वो नॉलेज है तो उसको भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग वो रिजिड नहीं है स्ट्रक्चर, उसमें आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, बहुत क्लियर चीज़ है, जब सबका क्लियर है कि किसके पास क्या पावर है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब सुपीरियर को पता है कि उसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स काम करने वाले हैं। सबऑर्डिनेट इज़ अवेयर दैट who is their superior and whom they are supposed to report. So everything is specified. So that comes in effective administration. तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि सबको अपना काम पता है, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हैं। लेकिन अगर वो नहीं पता होंगी तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। नाउ here it's not personal, it is personal. Personal means employees. So development of personal, कि जब आपको पता है आप when the employee is aware with the skills, when the employee is aware with the work, तो उसमें वो काम करने में उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जितना जॉब सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा उतना वो अच्छा काम करेगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा। टाइम बाय टाइम द पर्सन वुड बी रिसर्चिंग न्यू थिंग्स। लेकिन अगर आपने उसका स्किल बेस्ड काम नहीं दिया होता तो ही वुड बी फ्रस्ट्रेटेड, ही वुड बी डिससेटिस्फाइड, तो उसका भी डेवलपमेंट नहीं होता। और अल्टीमेटली दैट डेवलपमेंट इज समवेयर कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
Next is expansion and growth. As I said that all points are interlinked with each other. अगर यहाँ पे पर्सनल का डेवलपमेंट हो रहा है तो यहाँ पे एक्सपांशन भी होगा. किसका एक्सपांशन होगा? कंपनी का. जितना आपका एम्प्लॉय स्ट्रॉन्ग, जितने आपके हेड्स स्ट्रॉन्ग और जितना आपका एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉन्ग, उतना ही आपकी कंपनी ग्रोथ करती है. सो फॉर दैट proper management and proper administration is required. So again we'll take a quick revision that we have studied this 7 points of organizing, the importance of organizing. Next is structure of organizing. Now what is the structure of organizing? Let's understand. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है. स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक पैटर्न रेडी करना, एक फ्रेमवर्क रेडी करना. जैसे हमने पहले ही बात की कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने लोग काम करेंगे. ठीक है, एक सुपीरियर के अंडर में कितने लोग हैं. फर्स्ट थिंग, सबऑर्डिनेट के ऊपर कौन सुपीरियर है. ठीक है, दैट इज़ द सेकेंड थिंग. तो ये सब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं. अब मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि देखो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर अगर मैं बड़ा करूँ, अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे 3 पर्सन है और यहाँ पे ये पर्सन है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मेन है, ये जो रेड वाला बंदा है यहाँ पे ये टॉप लेवल पे है. ये जो 3 है उसके अंडर में ये लोग मिडिल लेवल पे हैं और ये जो है वो सब लोअर लेवल पे हैं. तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाइड हो रहा है कि ये जो टॉप लेवल वाला पर्सन है वो किसको इंस्ट्रक्ट करेगा. तो ये मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्ट करेगा. ये मिडिल लेवल वाले किसको इंस्ट्रक्ट करेंगे? लोअर लेवल वाले को इंस्ट्रक्ट करेंगे. मतलब ये जो लोग हैं इसको पता है कि इनका सबऑर्डिनेट यानी इनका सुपीरियर कौन है. तो ये इनको पता है कि इनका सुपीरियर कौन है. तो ये इनको पता है इनका सुपीरियर कौन है. तो ये पर्सन, और इन तीनों को पता है कि इनका सुपीरियर कौन है. ये जो पर्सन रेड में है वो इनका सुपीरियर है. तो यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क रेडी किया, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये फ्रेमवर्क रेडी किया है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, मैं वापस आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी. अब ये क्या है? सी, ये जो स्ट्रक्चर है मतलब फॉर एन एग्जाम्पल सबको पता चल जाता है कि उनके ऊपर अथॉरिटी कौन है, कहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे. अब ये स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या है? बहुत सिंपल है कि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरा हेड कौन है, मुझे कौन ऑर्डर देने वाला है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, काम ठीक से नहीं होते, किसी को पता नहीं चलता काम क्या करना है. इसीलिए स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट.